Hello children, good morning all of you. This is Adarsh Kumar Singh and today I am here in front of you with a new topic that deals with chapter 4 of History Part 1 of class 12. The name of the chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings. This is the chapter 4. Before this we have read about 3 different chapters. And today we are going to read about thinkers, beliefs and buildings. If you can see in the older syllabus, this chapter is named as thinkers, beliefs and buildings. जो हमारा नया syllabus आया है, in our new syllabus, the chapter's name has been changed. It is a history of Buddhism, Sanchi Stupa. कंटेंट सेम है, नो नीड टू कंफ्यूज, केवल चैप्टर्स का नेम बदला है, वो भी आपके न्यू सिलेबस में. यदि आपके स्कूल्स खुले रहते, योर टीचर माइट हैव टोल्ड अबाउट दिस दैट द नेम ऑफ द चैप्टर हैज बीन चेंज्ड. इट इज द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा. रेस्ट एवरीथिंग इज ओके. हाँ, कुछ चेंजेस हुए हैं क्लास 12 के सिलेबस में, कुछ चेंजेस हुए हैं एंड दोज चेंजेस आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. So that you cannot face any problem, you should not face any problem because I am with you. आपको कोई समस्या नहीं होगी. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवाइज सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा. जहां तक इस चैप्टर का ख्याल है, टुडे वी आर गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, if you are having any doubts, any queries, if you are having any kind of thing which you want to know except from this explanation, you are free to contact me on my phone number that is given in the description box of my YouTube channel, that is Stay with Adarsh Sir. इसके अलावा you can contact me personally on my WhatsApp number that is 9334174065. Let us begin the chapter 4, that is the thinkers, beliefs and buildings, and or better to say it is a history of Buddhism and Sanchi Stupa. So, in my previous chapter, we had read about Mahabharata. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा महाभारत को एक एग्जाम्पल लेते हुए as a text with the help of Mahabharata we understood about the culture, tradition and society of India. हमने जाना कि किस तरह से ancient times में हमारे यहाँ के लोग रहते थे. How did the practices or varna system develop during that period? And Mahabharata gave a detailed account of our system and society that was prevalent in India in the ancient times. Now today we are going to discuss about Mahabharata में एक बात और मैं बताना चाहूँगा. महाभारत में हम लोगों ने पढ़ा Brahminical traditions के बारे में. How Brahmins with the help of Dharma Sutras written by them and Dharma Shastra, Manu Smriti, they just format the society according to their wish. उन्होंने rules regulations बनाए जिसको society ने follow किया. Now today we are going to read about 2 different set of beliefs that developed during this period, and that was Buddhism and Jainism. Buddhism और Jainism as a belief काफी develop हुआ आने वाले दिनों में. In this chapter we shall discuss what were the reasons behind the development of Buddhism and Jainism. We will also discuss in this chapter that Buddhism is the religion that is not confined within India only. ये केवल इंडिया में confined नहीं है, rather it is just spread all over the world. Many countries are there in the world that have Buddhism as their official religion also. So let us start the chapter without wasting the time. A glimpse of Sanchi Stupa, that is the topic number 1 of the chapter. Sanchi Stupa, you might have heard the name Sanchi Stupa. Sanchi is the place that is situated at Kankheda village. Kankheda is the village, mind it. The name of the village is Kankheda, which is near Bhopal in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के पास कनखेड़ा नाम का एक जगह है जहां पर सांची स्तूपा है. सांची स्तूपा इज सिचुएटेड ओवर देयर. नाउ व्हाट इज स्तूपा? आखिर स्तूपा होता क्या है? सांची स्तूपा के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं, बट व्हाट इज स्तूपा? स्तूपा, इट इज अ माउंड लाइक स्ट्रक्चर. आई हैव रिटन हियर आल्सो, स्तूपा इज जस्ट अ माउंड लाइक स्ट्रक्चर. माउंड कहते हैं ढेर. इट इज अ माउंड लाइक
structure, or you can say that it is the hemispherical structure which contains the relics of Buddha. Relics means remains of Buddha. एक ढेर की तरह स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ माउंट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बुद्धा से रिलेटेड रेलिक्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भगवान बुद्ध ने यूज किया था, और उसको वहां पे रखा जाता है. उसके ऊपर एक इस तरह की सेमी हेमिस्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्तूपा. इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड प्लेस फॉर दोज पीपल who follow or who believes in Buddhism. The why stupa are used? It is mainly used for meditation. जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, नन्स होते हैं, वो स्तूपा में मेनली जाके वहाँ मेडिटेशन करते हैं. मेडिटेशन मीन्स वो ध्यान करते हैं. लॉट ऑफ एम्फेसिस इज गिवन अपॉन दिस टर्म मेडिटेशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, और मेडिटेशन के लिए स्तूपा का यूज किया जाता है. सो सांची स्तूपा, it is one of the well-known site for the Buddhists, which is situated at Kanikheda village near Bhopal, which is in Madhya Pradesh. Now, it is a great source of understanding Buddhism. जैसा कि मैंने बोला, यदि आप बुद्धिज्म को समझना चाहते हो, if you want to know about Buddhism, ठीक है, तो if you want to know, तो सांची स्तूपा can be one of the best source to understand about Buddhism. And it is also one of the best example of the restoration and preservation by ASI. ASI, you might be knowing, ASI stands for what? It stands for Archaeological Survey of India. So it is, the Sanchi Stupa is one of the best example of restoration and preservation of ASI. Why Archaeological Survey of India was set up? Last chapter में भी इस term का उल्लेख आया था. We have discussed about this term कि Archaeological Survey of India or Archaeological Society of India, better to say, it was set up in order to preserve, conserve and discover the ancient monuments or the things related to ancient India, and that's why it was discovered. और इसका काम था कि भारत के जो भी पुरानी चीजें हैं, जैसे पुराने मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग है, उसको फाइंड आउट करना, उसके डिस्कवर करना, उसको स्टडी करना और उसको प्रिजर्व करना, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल थे. बट डोंट मिस्टेक इट, इसको गलत तरीके से आप नहीं लीजिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जितने भी सारे एक्सकैवेशंस हुए या डिस्कवरीज हुई उनको इसने प्रिजर्व किया, क्योंकि उस समय द टाइम जिस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस ASI वाज सर जॉन मार्शल, एंड व्हेन दिस वाज एस्टैब्लिश्ड, उस समय यूरोपियंस का इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका था इंडियन कल्चर्स में, and they were very much interested in taking away the great historical past and remains of India to their countries. जैसे बहुत सारे जो साइट्स डिस्कवर्ड हुए, वहाँ जो बड़ी बड़ी पिलर्स मिले या बहुत सारी सुंदर इमारतें मिली, उसके बहुत सारे पार्ट्स को यूरोपियंस अपने लूट कर अपने यहाँ ले गए, अपने गार्डन्स में सजाया, अपने म्यूजियम्स में रखा, and that's why it was very difficult to preserve those things in that time. क्योंकि दिस वॉज वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और जो भी अच्छी चीजें भारत में एक्सकैवेट होती थी या पाई जाती थी, उसको वो वापस ले जाते थे इंग्लैंड, और वहां पर अपने गार्डन्स में वहां के बड़े बड़े लोग सजाते थे. तो वैसे वक्त यदि कुछ प्रिजर्व हो पाया, दैट मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ restoration and preservation by Archaeological Survey of India. And a person named Lord Cunningham, better to say Alexander Cunningham, Alexander Cunningham ने इसका डिस्कवरी किया था सांची का. अलेक्जेंडर कनिंगम ने वहीं पर अपना डेरा जमाया सांची के नजदीक, और he discovered about सांची. Lord Cunningham discovered about Sanchi and he discovered the Sanchi Stupa as well. और जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि whenever anything was discovered, the Europeans naturally became much more interested in it. वो चाहते थे फिर उसको उठा के मैं अपने यहाँ ले जाऊँ, हम अपने देश में लगाए, उसको म्यूजियम्स में रखें. So same thing was going to happen with Sanchi Stupa also, but
यहाँ पे बेगम्स ऑफ भोपाल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस ग्रेट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। इसे प्रिजर्व करने में बेगम्स ऑफ भोपाल का बहुत बड़ा रोल था। ये क्वेश्चन भी आता है आपके अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आप देखेंगे कि व्हाट वाज द रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सांची स्तूपा। तो बेगम्स ऑफ भोपाल, जिसमें दो बेगम का नाम आता है, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। एक शाहजहां बेगम थी और दूसरी उनकी बेटी थी सुल्तान जहां बेगम। दे प्लेड अ की रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। ठीक है, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिजर्वेशन। What was that role? So first come to शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम was the Begum of Bhopal. इसने persuade किया, she tried to motivate the colonial rulers कि यदि कोई historical facts कहीं से excavate हुए हैं, कोई artifact excavate हुआ है, तो it is better to keep it over there only, उसको वहीं पर रहने दिया जाए, ताकि people of that locality, that area or that particular country will come to know about their historical past. तो with her efforts शाहजहां बेगम tried to convince, जैसे सब जब गेटवे डिस्कवर्ड हुआ, ये जो स्तूपा होते हैं, ये सांची स्तूपा जो है, इसके 4 गेटवेज हैं, 4 गेटवेज। तो when it was discovered, the Europeans thought कि इसके ईस्टर्न गेटवे को उठा के हम ले जाएंगे लंदन के गार्डन में रखेंगे। तो शाहजहां बेगम she not only convinced, उसने न केवल कन्विंस किया, बल्कि उसने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर बना के अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया कि आप इसे ले जाइए, जो ओरिजिनल है उसे यहाँ रहने दीजिए। सो बाय ऑल हर मीन्स, बाय ऑल हर कैपेसिटी, शाहजहां बेगम tried her level best to preserve this Sanchi stupa, और उसके बाद her successor was her daughter Sultan Jahan Begum. She also played a very important role in the preservation of this Sanchi stupa. जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे लॉर्ड कनिंगम, उसके बाद इसके डायरेक्टर बने सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने भी जब सांची स्तूपा पर काम करना शुरू किया अपने टेन्योर में, तो दिस सुल्तान जहां बेगम, शी फंडेड ऑल हिज वर्क। उनके लिए होटल्स बुक करवाना, उनकी टीम के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाना, रहने का पूरा इंतजाम करना, ऑल थिंग्स वर डन बाय सुल्तान जहां बेगम। एंड दैट्स व्हाई व्हेन सर जॉन मार्शल completed his work, when he just completed the writing of volumes on Sanchi Stupa, he dedicates most of parts of it to Sultan Jahan Begum. So the Begums of Bhopal, इसके अलावा she funded, सुल्तान जहां बेगम ने बहुत बड़ा फंड भी दिया for the preservation of Sanchi Stupa. इसके अलावा एक म्यूजियम का भी उन्होंने निर्माण किया, उसमें इससे रिलेटेड चीजों को रखी जा सके, जैसे इसके वॉल्यूम्स थे, जो बुक्स थे इससे रिलेटेड लिखे गए। सो दीज बेगम्स ऑफ भोपाल really they played a very important role in the preservation of the Sanchi Stupa. So this was about Sanchi Stupa. Now come to the background, sacrifices and debates. It is our next topic. Now you see, in the last chapter we have read about the Brahmanical texts like Dharma Sutras, Dharma Shastras, Mangu Smriti and the ancient Indian society. तो बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ? वैसे जब होल सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय देम और मेड बाय देम, वैसे में द न्यू बिलीफ्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हाउ इट डेवलप्ड, किस तरह से डेवलप हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि बैकग्राउंड क्या था इसका। तो सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे ओल्डर टाइम्स में, सैक्रिफाइसेस मींस बलि प्रदान की जाती थी। According to Brahmanical texts, sacrifices were done by the people for many purposes. जैसे mid first millennium, जो फर्स्ट सेंचुरी का मिड टर्म था, मिड फर्स्ट मिलेनियम, it is considered to be a turning point in the world history. वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज सेवरल चेंजेस took place during that period. मिड फर्स्ट मिलेनियम में बहुत सारे चेंजेस हुए, लाइक this period saw the emergence of great thinkers or philosophers all over the world. यही वो टाइम था जब दुनिया में बड़े बड़े थिंकर्स या फिलोसफर्स का प्रादुर्भाव हुआ। That means emergence of great thinkers or philosophers all over the world, जिन्होंने अपनी सोच से, जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट से, जिन्होंने अपने इम्पैक्ट से पूरी सोसाइटी को प्रभावित किया। The whole society was influenced by them. Like
many of these philosophers, some examples are there, like Buddha and Mahavir in India, Zarathustra in Iran, and Plato और Aristotle in Greece. इसके अलावा चाइना में भी किंग जो हुए, बहुत सारे ऐसे philosophers हुए. तो ये जो philosophers और thinkers थे, they developed a new way of thinking. उन्होंने एक नया तरीका निकाला थिंकिंग का. इन्होंने चीजों को नए सिरे से सोचना शुरू किया. And by their thoughts, by their ideas, by their vision, and by their teachings, they inspired the whole world. तो ये सब, these all developments took place during the mid first millennium BCE only. That's why it is called a great turning point in the world history. Now these thinkers try to understand the mysteries of existence of relations between human and cosmic order. These philosophers or thinkers, they wanted to search out, or they tried to search out the questions related to human existence. यदि if I am a human being, I am born as a human, what is the reality behind my birth? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चाई क्या है? What is my relationship with the other world? दूसरी दुनिया जो है, मरने के बाद जो दुनिया होती है, या जन्म लेने से पहले इंसान जिस दुनिया की हम चर्चा करते हैं, उससे हमारा क्या रिलेशनशिप है? सो थिंकर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्रीज. इस रहस्य को सुलझाने की उन्होंने कोशिश की. बाय विद देयर प्रीचिंग्स, विद देयर टीचिंग्स, दे ट्राइड अ लॉट. इसके अलावा दिस वाज द पीरियड व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड. यही वो समय था जब नए किंगडम्स और सिटीज एस्टैब्लिश हुए, लाइक महाजनपद. 16 महाजनपद के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, 16 महाजनपद. तो वो जनपद का इमर्जेंस भी इस पीरियड में हुआ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एंशिएंट इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था सैक्रिफाइसेस. Because ancient Indian culture was greatly influenced, or you can say wholly influenced by the Brahmanical thoughts, जिसके मेजर पार्ट्स होते थे sacrifices. Sacrifices means बलि प्रदान करना. It was a common tradition in the ancient times. Ancient times में एक बड़ा common tradition था. कोई भी important चीज है, यज्ञ करना है, sacrifice दे दो. कुछ की मन्नत मांगनी है, सैक्रिफाइस दे दो. तो सैक्रिफाइस हैज बीन अ कॉमन ट्रेडिशन फॉर इंडियन कल्चर. आज भी टुडे आल्सो यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ सैक्रिफाइसेस गिवन ऑन द नेम ऑफ डिटीज एट सेवरल प्लेसेस इन इंडिया. बहुत जगह बलि की प्रथा आज भी स्टार्ट. एंड दीस थिंकर्स, ये जो नए थिंकर्स हुए, दे क्वेश्चनड एंड अपोज द सैक्रिफाइस. उन्होंने क्वेश्चन किया इन सैक्रिफाइसेस को, अपोज किया इसका. और इन सैक्रिफाइसेस में पता कहां से चलता है? तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन कैन बी नोन थ्रू ऋग्वेदा. हिंदुओं की सबसे प्राचीन ग्रंथ है, द ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉर इंडियंस, बेसिकली द हिंदूज इज कंसिडर्ड टू बी द ऋग्वेदा, दैट इज रिटन बिटवीन 1500 BCE to 1000 BCE. और इस ऋग्वेदा के थ्रू वी कैन नो अबाउट द एंशिएंट or the ancient Indian traditions, or you can better say the Vedic traditions. और इन ऋग्वेदास में hymns लिखे गए हैं. Hymns are written in this Rigveda. What are hymns? Rigveda, it is considered to be the oldest Veda. आप जानते होंगे, you might be knowing कि there are 4 Vedas, 4 वेद हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. इन सभी में सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है ऋग्वेद को, which was written between 1500 BCE to 1000 BCE. Or it is the rich source of understanding the ancient Indian society. In Rigveda में hymns लिखे गए. Hymns means you can say it that these are the shlokas. श्लोक आप मोटे तौर पर इन्हें श्लोक कह सकते हो, which are written in the praise of gods, deities. देवी देवताओं के प्रेज में जो लिखा गया है, हाइम्स लिखे गए हैं, उसको हाइम्स कहते हैं. और मेनली 3 देवताओं का वर्णन है ऋग्वेद में. बेसिकली 3 डिटीज आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. सबसे ज्यादा इन्हीं 3 डिटीज की चर्चा हुई है. वन इज अग्नि, देन इज इंद्र एंड देन इज सोम.
These are the three main deities mentioned in Rig Veda. Means whatever hymns are there in Rig Veda, that is mainly dedicated to these three gods. सबसे ज्यादा hymns अग्नि के लिए डेडिकेट किया गया है, उसके बाद इंद्र के लिए और उसका सोम के लिए। और ये hymns लोग गाते कब थे, चैंटेड, मतलब उनका उच्चारण कब करते थे, श्लोकों का उच्चारण, कि वाई ड्यूरिंग सैक्रिफाइस, जब ये बलि चढ़ाते थे या कोई हव्य करते थे, यज्ञ करते थे, या कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, एट दैट टाइम hymns were chanted during these sacrifices. और sacrifices were done for all the purposes. जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया, बहुत सारी चीजों के लिए sacrifices का प्रोग्राम। Brahmanical text mentioned about offering sacrifices for various purposes. Like, इसको दो हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी सैक्रिफाइस किए जाते थे। हाउस होल्ड पर्पस मतलब हो गया यदि घर में शांति चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, या कोई मन्नत मांगनी है, या फिर शत्रुओं का संहार करना, तो मेनी सैक्रिफाइसेस वे डन फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। और दूसरा एलैबोरेटिव पर्पसेस के लिए भी सैक्रिफाइस किए जाते थे। मींस कुछ बड़े के लिए, प्राप्ति के लिए सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। जैसे दो यज्ञ का अक्सर नाम आता है, आपने सुना भी होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा लोग राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करते थे। व्हाट वाज राजसूय यज्ञ? कि एक राजा जो होता था वो एक यज्ञ करता था जिसमें सारे राजा उसकी डिग्निटी को, उसकी ऑथोरिटी को मानते थे। दैट वाज कॉल्ड राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो भगवान श्री राम ने किया था कि घोड़ा है उसको छोड़ दिया जाता था, और वो जहां जहां से वो घोड़ा घूमता था, जिस जिस एरिया से, वो सारे एरिया उस राजा के कंट्रोल में माना जाता था, जब तक कि कोई उसे अपोज न करे। सो दीज सैक्रिफाइसेस वर डन फॉर टू पर्पसेस, और इन सब के लिए बाद में उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। सो दिस सैक्रिफाइसेस वर डन फॉर टू पर्पसेस, एक हाउस होल्ड पर्पस के लिए और एक एलैबोरेटेड पर्पस के लिए, ठीक है। एंड व्हेन दीज थिंकर्स, जब ये थिंकर्स जैन, महावीर जो जैन हुए, जैन महावीर या फिर बुद्ध हुए, व्हेन दे डेवलप्ड, दे क्वेश्चन दिस सैक्रिफाइसेस, उन्होंने क्वेश्चन किया इसके बारे में कि व्हाई ऑन द नेम ऑफ रिलीजन innocent animals are being killed, क्यों मारा जाता है? So they questioned about these things. Now what were those questions? New questions were posed by, created by, asked by these thinkers. ये questions उनको कहाँ से मिले? When they came to know about Upanishads, जब उन्होंने Upanishads के बारे में माना, ठीक है। ये उपनिषद जो थे वेद के अलावा, it is an another source to understand the Hindu tradition, that is Upanishads. Upanishad can be considered as the source of new questions. उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, आप जानते हैं, गुरु के समीप बैठना, to sit near the guru, that is called उपनिषद। इसके पीछे फिलोसफी क्या थी? to sit near the guru and gain the knowledge, that was called उपनिषद। So उपनिषद contains philosophical views of life. जैसा कि we have read about Rigveda, कि Rigveda contains the hymns praising the deities, whereas Upanishad contains the philosophical views of life. जैसे what is the meaning of life, जीवन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, what is the possibility of life after death, क्या मरने के बाद भी कोई जीवन है, यदि है तो उसकी संभावना कितनी है, and rebirth, पुनर्जन्म क्या है, क्या हमारे एक्शंस रियली दे आर रिस्पांसिबल फॉर आवर रीबर्थ। सो ऑल दिस फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैज बीन डिस्कस्ड इन उपनिषद्स। उपनिषद्स में सारे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इनकी व्याख्या की गई है। व्हाट इज रियलिटी, सच्चाई क्या है, क्या वाकई में इंसान जो करता है, जो हम लोग कर रहे हैं, व्हाटएवर द एक्शंस दैट इज परफॉर्म्ड बाय अस, आर दोस एक्शंस रिस्पांसिबल फॉर आवर रीबर्थ, क्या वो हमारे पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी है, यदि है तो कितना तक, और कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये सारी चर्चाएं, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन उपनिषद्स। इसके अलावा क्वेश्चंस अबाउट सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस वर आल्सो मेंशन्ड इन उपनिषद्स। जो सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशंस है, बलि देने की जो प्रथा है, परंपरा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है उपनिषद में। ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, एंड दीज क्वेश्चंस वेर हॉटली डिबेटेड
by the thinkers like महावीर, like बुद्ध। और जब ये थिंकर्स में उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस पर डिबेट किया, डिस्कशन किया। ओके, सो these were the questions, this was the background, under this background when the whole society, Indian society was just going through the way laid down by the धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्र, जब पूरी दुनिया उस हिसाब से चल रही, पूरी दुनिया सॉरी टू से, जब पूरा भारत उस हिसाब से चल रहा था जिस हिसाब से ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या की, the way Brahmins have explained with the help of धर्म सूत्र एंड धर्म शास्त्र, आपने पढ़ा होगा, और मनुस्मृति, वैसे में ये न्यू क्वेश्चन थिंकर्स ने एक नया तरीका दिया, एक नया हॉरिजन दिया सोच को, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, we have, so till now we have discussed about सांची स्तूपा, जस्ट एक मेयर इंट्रोडक्शन हमने इसका देखा, बैकग्राउंड कि कैसे बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड हुआ, किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हुआ, न्यू सेट ऑफ बिलीव्स लाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए कैसे बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि कोई भी घटना होती है तो उसका एक बैकग्राउंड बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, सम इंसिडेंट्स होते हैं जो कि उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो हाउ बैकग्राउंड वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू बिलीव्स, जिसमें हमने सैक्रिफाइसेस के बारे में जाना, डिबेट्स, उस पे जो डिबेट्स हुए उसके बारे में जाना, ऋग्वेद के थ्रू हम उन ट्रेडिशंस को जान पाए। इसके अलावा हमने न्यू क्वेश्चंस, थिंकर्स ने जो नए क्वेश्चंस पर डिस्कस करना, डिबेट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया, वो डिस्कस्ड अबाउट दोस क्वेश्चंस आल्सो। इस वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।